So, hey guys, hello aspirants, welcome to my lecture series. So, what is the topic name? So, we are currently doing today advanced algebra, highly important for SSC, CAT, as well as other MB entrance exams like MSCET and different MB entrance exams. So my name is Sarim Parvez. I cleared various exams like IBPS PO, IBPS RR PPO, and all clerk level exams. I am gate qualified in CAT. I scored 99.7 percentile in quants. I did BTech in mechanical engineering from Aligarh Muslim University. Now let's move to the concepts. Okay, so today is the lecture one. So what I did, I divided this complete series, algebra series, into five major segments or part, whatever you called it. So today we are doing the first part, followed by second, then third, then fourth, then fifth, followed by practice questions. Highly important. Practice and PYQs of these different exams. Okay. If response will is good, then I will surely launch the paid batches as well. So now let's move to the concepts. Okay, so सबसे पहले देखते हैं what are algebraic identities, highly important algebraic identities. Okay, so algebraic identities. So let me write down some important algebraic identities for you. So number one is, पढ़ी भी होगी काफ़ी क्लासेस में ज़्यादातर एस्पायरेंट्स ने मोस्टली. सो मैं लिखता हूँ, डू नोट डाउन. So it is a plus b ka whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. What's the second one? Second one is a minus b ka whole square is equal to a square plus b square minus ka 2ab. Now let's come to the cubic excess cube. A plus b whole cube, it is a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Now let's come to okay, a minus b whole cube, it will become a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Now let's come to next, which is a cube plus b cube, and so it will become a plus b in one bracket, in another bracket a square minus ab plus b square. Now to come the second, sorry, a cube minus b cube, so it will become a minus b, a square plus ab plus b square. Perfect. Now these are all some of the important. अब ये सब तो याद रखने ही रखनी है, और साथ में इसकी एक जनरल इंटरप्रिटेशन भी मैं लिख के देता हूँ. सपोज इफ इट कम्स इन द फॉर्म लाइक दिस, a की पावर n माइनस b की पावर n. So what will it will become? It will become a की पावर n minus 1 into b की पावर 0
प्लस ए की पावर n-2 इंटू बी की पावर 1 प्लस ए की पावर n-3 इंटू बी की पावर 2 up to where, up to when a की power becomes equal to 0 and b की power becomes n-1. So this is one of the highly important formula. ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं इसको हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. नॉट सारे, बेसिकली ऑड पावर्स वाले, लाइक एंड वेयर माइनस साइन इज देयर, है ना. सपोज if I had to drive this, we can easily drive this formula using this using this, है ना. Now let's come to some important formulas, highly important for the SSC exam. Suppose let me write down a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So it result will become a plus b plus c into another bracket a square plus b square plus c square minus of ab minus of bc minus of ac. And what is the other form of this formula? Other form is what is the other form? Other form is a plus b plus c in one bracket, and in another bracket write down as a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. Perfect. And don't forget to multiply it by 1 by 2, or let's say, let me write down 2 here, so it will become 1 by 2 like this. So this is one result for this formula, है ना. And this is one result, and this is another result for this formula. This is one result for the formula. Both are highly important and equally useful while solving the questions based on uh, what question demanded, है ना. नाउ हैंड यहीं से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है जो हम इन्हीं के बेसिस पे ड्राइव करते हैं. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट? सो लेट मी राइट डाउन. इफ a plus b plus c इक्वल टू 0, देन क्या होगा? इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0. सो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3abc. और ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब ए बी सी कितने के बराबर हो? 0 के बराबर. Perfect. Now let's move to the some important questions. Now suppose if I had to find out the values like uh, some important results. Let's say we know about x plus 1 by x. Let's name it as p. So we need to find out x square plus 1 by x square. We need to find out x square minus 1 by x square. We need to find out x cube plus 1 upon x cube. We need to find out x cube minus 1 upon x cube, and x power 4 plus 1 upon x power 4. कैसे करेंगे? And now watch it carefully. So यहाँ से हम ये स्टेटमेंट लेते हैं x plus 1 upon x की वैल्यू p.
स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, बिकॉज वी रिक्वायर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², स्क्वायरिंग both sides. On squaring both sides we get x square plus 1/x² as p square, और साथ में जस्ट अ मिनट, सो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पे मिलेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2a इंटू बी, विच इज नथिंग बट पी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस का 2। हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू शुड रिमेंबर। और सिमिलरली अगर हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के लिए, उसके लिए कैसे करेंगे, लेट्स सिमिलरली इफ आई हैड टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³, सो कैसे करेंगे, सिंपल है, यहीं से ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, x प्लस 1/x क्यूबिंग बोथ साइड, अगर मैं इनकी दोनों साइड क्यूबिंग कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू p क्यूब, सो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इक्वल टू p क्यूब, x से x कैंसिल, सो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू प्लस 3x प्लस 1/x इक्वल टू p क्यूब। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, p, सो x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, p क्यूब माइनस 3p। परफेक्ट। नाउ अगर हमें x पावर 4 x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना, सो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, पी स्क्वायर माइनस 2, नेम्ड इट एज लेट्स से बी, आई एम नेमिंग इट एज बी। नाउ स्क्वायरिंग हियर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगा, कम टू नेक्स्ट पेज, सो स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा x पावर 1/x पावर 4 प्लस 2x² इंटू 1/x² इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का 2। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं हमें यहाँ से, दैट रिजल्ट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि अगर रिजल्ट रिमेंबर करो रखोगे तो बेहतर है, फास्ट कैलकुलेशंस में मदद करेंगे, है ना। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन से पेन से लिखे, लेट मी राइट डाउन बाय ब्लू, ओके, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो नंबर 1, इफ x plus 1/x is given as p, then value of x square plus 1/x² becomes equal to p square minus 2. This is result 1, and the value of x power 3 plus 1 upon x power 3 becomes equal to p cube minus का 3p. And what's the third conclusion? Third conclusion is x power 4 plus 1 upon x power 4 becomes equal to p square
-2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अरे इधर b माना था हमने, अज्यूम करा था, तो b को अगर इधर रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर। सो इसको हम लिख देंगे लेट्स से यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का 2। So these are some of the highly important results that you must remember. So यहाँ पे let's say एक एग्जाम्पल करते हैं। परफेक्ट, है ना। सो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मुझे बताना है। लेट डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज। we change the pen। ऑरेंज विजिबल है, हाईली विजिबल है। चलो सो देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू लेट से ए दे रखी है, सो हमें वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 1/x and find the value of, sorry, then find the value of x plus 1/x and x minus 1/x। इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सी हियर। सो यहाँ से हम इसकी हेल्प लेंगे। सो एक्स स्क्वायर, सो हमें क्या निकालना है, पहले x प्लस 1/x निकालना है ना। सो x प्लस 1/x निकालना है। हमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसकी आइडेंटिटी खोल देते हैं। सो विच इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो विच इज, दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x कैंसिल आउट, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस का 2। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी थी, a गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ से मैं लिख दूंगा a प्लस 2। सो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1/x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे, इसकी पावर हट जाएगी, ये आ जाएगा प्लस माइनस a प्लस 2। होप यू गेट द क्वेश्चन। आया समझ, परफेक्ट। सो यहाँ से ये मिल गया हमें x प्लस 1/x प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस 2 y प्लस माइनस कॉज। अगर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, लेट से x प्लस 1/x की वैल्यू एक जगह हमको मिल गई 3 और एक जगह हमको मिल गई -3। अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो इसका, तो x प्लस 1/x की होल स्क्वायर की दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 9। और अगर -3 होगी तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 9। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से पावर हटा के इधर अंडर रूट लेते हैं, इधर अंडर रूट लेते हैं, देन इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू ऐड प्लस माइनस, बिकॉज वी डोंट नो, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव एज वेल, है ना। सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड नीड टू रिमेम्बर। सो सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली अब हम एक काम करते हैं। व्हाट हैपेंड, ओके, शैम्पू नहीं बनेगा बोर्ड। सो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, एक्स एक्स कैंसिलिंग आउट। सो ये मिल जाएगा विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड माइनस का 2। एक्स माइनस 1/x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है, a माइनस का 2। तो यहाँ से x माइनस 1/x की आ जाएगी वैल्यू
यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस a माइनस 2. So these are the two results that you need to remember. And what is the common condition for both? Common condition क्या है? जब only if x square plus 1/x square equal to a, if then only these results are valid, है ना? Otherwise तो फिर दिक्कत ही है. Now let's do some questions. जितना भी हमने डिस्कशन करा है उस पर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, है ना? So let's say, let me write down the question. कौन सा पेन लें? Okay. So what is the question? Question 1 says if x power 4 plus 1 by x power 4 equal to 119, then find the value of x plus 1 by x. x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है हमें. सो यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट का a माइनस 2 विच इज नथिंग बट 119 एंड प्लस का 2. लेट्स सॉल्व इट, है ना? सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हम निकाल देते हैं सबसे पहले. सो ये कितना आ जाएगा? x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू 119 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 121. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट प्लस माइनस 121 विच इज नथिंग बट प्लस माइनस रूट 11. अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलेगा. सिंस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू डाल लो. लेट से एक्स की वैल्यू हम -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, -7 ले लें, 19 ले लें, कुछ भी ले लें. एक्स स्क्वायर नोट ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, है ना? सो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और सिमिलरली 1 बाय जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल, जैसे 1, जैसे माइनस, जैसे लेट्स से एक्स की वैल्यू हमने -1 ले ली, तो -1 का स्क्वायर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1. सो और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी ग्रेटर देन कितनी आएगी? 0. सो दैट मीन्स अगर दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है. सो इसका मतलब ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता. नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल हेयर. नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल हेयर, है ना? सो एक्स की कितनी वैल्यू मिली थी? नो डाउट. हम बेसिक मैथ क्या कहती है? बेसिक मैथ कहती है जब भी आपको होल्स पावर हटा के दूसरे वाले नंबर से आगे इक्वेट करना है, नो डाउट प्लस माइनस साइन आना चाहिए. बट इधर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल. -11 value is technically not possible. So what is the final answer we are getting? We are getting our final answer as 11. So what will be the value of x square plus 1/x square? Is nothing but 11, है ना? बट हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? x प्लस 1/x. अब डायरेक्ट करेंगे इसे. मैंने फॉर्मूला बताया था x प्लस 1/x इज नथिंग बट अंडर रूट a प्लस 2. सो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 11 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 13. सो ये इधर आएगी प्लस माइनस का साइन, इधर आएगा प्लस माइनस का साइन. वाई प्लस माइनस साइन? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. लेट से x की वैल्यू हो गई -4 और यहाँ से -4 हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा. और लेट से अगर यहाँ x की वैल्यू 2 ले लूँ तो पॉजिटिव भी हो सकता है. तो यहाँ दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं. सो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? प्लस माइनस का 13. सो दिस इज आवर आंसर. Now the conclusion number 2 through this question.
I am writing the down on the next page that you need to remember. कौन से पेन से लिखे हैं? Let's say, let me write it down with the help of this purple pen. So what is the conclusion number 2? If x power 4 plus 1 by x power 4 equal to y, not y, let's say k, है ना, then value of x square plus 1 by x square become equal to under root k plus 2. This is one result, है ना, and value of x plus 1 by x becomes equal to plus minus under root k plus 2 plus ka 2. I hope you get the concept very well. So these are some of the most and highly important conclusions that must be remembered before solving before going for the exams like SSCs and as well as CAT. क्यों? क्योंकि वहाँ स्पीड ही मैटर करती है, और स्पीड कैसे आएगी? व्हेन यू लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स, व्हेन यू लर्न अबाउट द फॉर्मूलाज, जितना जल्दी आप करेंगे उतना आप रैंक लाने की, अच्छी रैंक लाने की possibility high रहेगी. So now let's move to some of the questions. Okay, let's move to the next page. So what will be the question? Let's see. If x plus question 2, if x plus 1 by x equal to 2, then find the value of x power 27 plus 1 upon x power 39. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. सो कैसे करेंगे? सिंपल है. यहाँ अगर हम इक्वेशन को देखें, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, अगर हम x फॉर x इक्वल टू 1, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना. x की वैल्यू 1 रखेंगे और 1 बाय एक्स की 1, 1 प्लस 1 1 2, इसका मतलब हमें x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई कितनी? 1. सो यहाँ से अब तो इट विल बिकम अ केक वॉक. सो x पावर 27 प्लस 1 अपॉन x पावर 39, सो ये बन जाएगा 1 की पावर 27 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 39. So that is 1 plus 1 2. But there are students who questions, but is it valid? It is absolutely valid and it is 100% correct. क्योंकि at the end what we are doing, we are actually finding the value of x and putting into the questions. So better है ना कि instead of framing equations like this, x square plus 1 equal to 2x, है ना. सो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट x की वैल्यू 1 मिलेगी, बट आइंस्टाइन थोड़ी ना बनना है. यू नीड टू कैंसिल, यू नीड टू क्लियर द कंपटीशन एंड गेट अ डिसेंट रैंक, है ना. सो देयर आर फ्यू रिजल्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर डिफरेंट, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ही मतलब थोड़ा फैमिलियर रहोगे नंबर के साथ तो बेटर रहेगा. सो लेट मी राइट डाउन the value of x plus 1 by x for different values of x, for different values of x, है ना. सो थोड़ा ऊपर करके बना देते हैं.
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यूज, और यहाँ पे मैं, या फिर यहाँ पे मैं x की वैल्यूज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ क्या क्या आ रही है। लेट से x की वैल्यू जीरो तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं है वन बाई एक्स, है ना। सो वन पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, टू, और टू पे वैल्यू कितनी मिलेगी, टू प्लस पॉइंट फाइव, दैट इज 2.5। थ्री पे वैल्यू कितनी मिलेगी, थ्री पे वैल्यू मिलेगी 10/3 और 3.33। फोर पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 4.25 और 17/4। फाइव पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 26/5 और 5/2। एक माइनस वन पे और निकाल देते हैं, माइनस वन पे वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। अब माइनस साइन लगा देंगे तो इसी का माइनस हो जाएगा, है ना। So these are some of the important values that you need to remember for such type of questions. Let's move to the another question. इधर कराता हूँ मैं on next page. Okay. So question 3. Question. What the hell is wrong with the 3? Sorry. So question 3. So question 3 says if x plus 1 by x equal to -2, then find the value of x power 67 minus 1 upon x power 98. We need to find out its value. So x plus 1 by x की वैल्यू -1 के लिए इक्वेशन हाईली सेटिस्फाइड है, हाईली सेटिस्फाइड मतलब 100% सेटिस्फाइड है। सो x की वैल्यू -1 की पावर 67 माइनस ऑफ 1 अपॉन -1 की पावर, क्या बन गया ये, -1 की पावर 98। सो ये बन जाएगा -1, -1 की ऑड पावर -1, माइनस ऑफ -1 की इवन पावर +1। So this will become -1 minus of 1, that is -2. What will be our answer? -2 will be our answer. Perfect. Now एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन फोर्थ। So question fourth says if x plus 1 by x equal to 10/3, then find the value of x power 5. ऐसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन राउंड ना लगेगा, नो डाउट, बट मैंने बता रखा है x की वैल्यू 3 के लिए दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो x की पावर 5 कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 की पावर 5, विच इज नथिंग, 243 विल बी आवर आंसर। So what will be our answer? 243 will be our answer. Perfect. Now this is all for today's lecture. We will discuss other concepts in the next lecture. So that's all for today. Thank you.